Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 3. Subject is mathematics. Exercise 2D. This exercise has been given at pages 53, 54 and 56. Students, after watching this lesson, you will be able to know subtraction of 4-digit numbers with regrouping. Solve question number 1, 2, 3 and question number 8. Students, in previous lesson we have learned subtraction of 4-digit numbers with regrouping, and today we will learn subtraction of 4-digit numbers with regrouping and then check the answer. Let us understand it with the help of an example. Here, first we write 4 columns for 4-digit numbers: ones, tens, hundreds, thousands. And the number is 5226 minus 1672. Now we start from ones column. 6 ones minus 2 ones equal 4 ones. Now in tens column we have 2 tens and 7 tens, and we cannot subtract 7 from 2 because 2 is less than 7. So what should we do now? Yes, you have to borrow 100 from hundreds column and convert it in tens. So convert 100 into 10 tens. 10 tens and 2 tens. 10 tens जो हमने बोरो किया और 2 tens जो कि tens वाले कॉलम में पहले से मौजूद है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 tens आ जाएंगे. Now we can subtract 7 from 12 tens because 12 is greater than 7. So 12 tens minus 7 tens equal 5 tens. Now what's remaining in hundreds column? Yes, 100. And we cannot subtract 600 from 100. So we convert 1000 into 10 hundreds. Now 10 hundreds plus 100 equal 11 hundreds. And we can subtract 6 from 11 hundreds. So 11 hundreds minus 6 hundreds equal 5 hundreds. Okay. Now what's the remaining in thousands column? Yes, 4 thousands. Now 4 thousands minus 1000 equal 3 thousands. And the number is 3554. Now remember, when subtracting the numbers we can add to check the answer. ठीक है कि जब हम किसी नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके आंसर को चेक करने के लिए हम इसे ऐड कर सकते हैं. अब ऐड करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है 3554, इस नंबर को और इसके ऊपर वाले नंबर को 1672, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे. इन्हें ऐड करने के बाद अगर हमारे पास आंसर 5226 जो कि ये वाला नंबर है, अगर ये नंबर आ जाए तो इसका मतलब है हमने सब्ट्रैक्शन ठीक की है. ओके, लेट्स सी. यहाँ पे हम सबसे पहले चेक लिख लेते हैं, उसके बाद कॉलम्स राइट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. और सबसे पहले नंबर लिखेंगे हम 3554 प्लस 1672. इन दोनों नंबर्स को हम ऐड करते हैं. अब 4 प्लस 2 ones equal 6 ones. And now 5 plus 7 tens equals 12 tens. अब 12 tens में से 2 टेंस वाले कॉलम में लिखेंगे और 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में
कैरी करेंगे। अब 1 + 500 = 600 एंड 6 + 600 = 1200। 1200 आ गया, यहाँ भी हम 200 वाले कॉलम में राइट करेंगे और 1000 वाले कॉलम में कैरी करेंगे। अब 1000 + 3000 = 4000 + 1000 = 5000। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 5226। अब ये वाला नंबर और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारी सब्ट्रैक्शन ठीक है। ओके, ये तरीका होता है क्वेश्चन को चेक करने का। सो लेट्स मूव अवर एक्सरसाइज नाउ। Question number 8. Subtract, then check the answer. A part is, first we write column ones, tens, hundreds, thousands, and the number is 9543 minus 5682. सबसे पहले वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करेंगे माइनस करना। तो 3 - 2 ones = 1 ones, and 4 tens minus 8 tens, it's not possible because 4 is less than 8. So we convert 100 into 10 tens, and now 10 tens plus 4 tens = 14 tens. 14 minus 8 tens = 6 tens. And now what's the remaining in hundreds column? Yes, 400. 400 is less than 600. It's not possible. So we convert 1000 into 10 hundreds. 10 hundreds plus 4 hundreds = 14 hundreds. 14 hundreds minus 6 hundreds = 8 hundreds. And what's the remaining in thousands column? Yes, 8 thousands. 8 thousands minus 5 thousands = 3 thousands. And the answer is 3861. Okay. यहाँ तक हमने सब्ट्रैक्शन की। अब हमने इसको चेक कैसे करना है, तो इसके लिए जैसा कि आपको इसकी एग्जांपल में भी बताया गया कि सबसे पहले जो इसका आंसर आया है 3861, इस नंबर को और इससे ऊपर वाले नंबर को ऐड कर लेंगे। लेट्स सी, सबसे पहले कॉलम्स राइट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, एंड नंबर लिखते हैं कि 3861 प्लस 5682। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके देखते हैं। 1 + 2 ones = 3 ones. 6 + 8 tens = 14 tens. 14 tens का 4 टेंस वाले कॉलम में राइट करेंगे और 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में कैरी करेंगे। अब 100 + 800 = 900. 900 + 600 = 1500. और अब 5 हंड्रेड्स वाले कॉलम में राइट करेंगे और 1 थाउजेंड्स वाले कॉलम में कैरी करेंगे। तो 1000 + 3000 = 4000. 4000 + 5000 = 9000. तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 9543। ये वाला नंबर अब जो हमने सब्ट्रैक्शन की इसके पहले वाले नंबर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमने इसकी सब्ट्रैक्शन ठीक की है। तो लेट्स सी अनदर पार्ट, बी पार्ट। हियर द नंबर इज 3140 minus 1265। सबसे पहले वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। तो 0 - 5 वंस। 0 में से तो हम 5 माइनस नहीं कर सकते बिकॉज 0 is less than 5. So we convert 110 into 10 ones. So 10 ones minus 5 ones = 5 ones. अब हमारे पास टेंस कॉलम में क्या बच गया? यस, 3। तो 3 में से 6 को माइनस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम हंड्रेड्स वाले कॉलम में से 100 टेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास 13 टेंस आ जाएंगे। 13 - 6 टेंस = 7 टेंस। तो अब हंड्रेड्स वाले कॉलम में हमारे पास क्या बचेगा?
यस 0, बिकॉज यहाँ पे हंड्रेड्स वाले कॉलम में सबसे पहले हमारे पास 1 था, तो 1 हमने 100 टेंस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे 0 बच गया। अब 0 में से 2 को माइनस नहीं किया जा सकता, तो यहाँ भी हम थाउजेंड वाले कॉलम में से 1000 हंड्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये 10 हंड्रेड्स बन जाएगा। 10 हंड्रेड्स माइनस 2 हंड्रेड्स इक्वल 8 हंड्रेड्स। तो अब हंड्रेड्स वाले कॉलम में हमारे पास क्या बच गया? यस 2, तो 2 हंड्रेड्स माइनस 100 इक्वल 100, और हमारे पास आंसर आ गया 1875। इसको चेक करने का तरीका वही है जो अभी मैंने आपको पीछे भी बताया है कि आंसर को इसके ऊपर वाले नंबर में प्लस करेंगे, और इनको प्लस करने के बाद अगर आंसर ये सबसे पहले वाला नंबर आ जाए तो इसका मतलब कि हमने सब्ट्रैक्शन और इसका चेक बिल्कुल ठीक कर लिया। तो लेट्स सी, सबसे पहले कॉलम्स राइट करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, एंड फर्स्ट नंबर इज़ 1875 प्लस 1265। तो प्लस करने के लिए भी सबसे पहले हम वंस वाले कॉलम में देखेंगे। 5 प्लस 5 वंस इक्वल 10 वंस, तो 10 में से 0 वंस वाले कॉलम में राइट करेंगे और 1 टेंस में कैरी करेंगे। तो 1 प्लस 7 टेंस इक्वल 8 टेंस, 8 टेंस प्लस 6 टेंस इक्वल 14 टेंस। 14 टेंस का 4 टेंस में राइट करेंगे और 1 हंड्रेड्स में कैरी कर देंगे। तो 1 प्लस 8 हंड्रेड्स इक्वल 9 हंड्रेड्स, 9 हंड्रेड्स प्लस 2 हंड्रेड्स इक्वल 11 हंड्रेड्स। 11 हंड्रेड्स में 1 हंड्रेड्स वाले कॉलम में राइट करते हैं और दूसरा 1 थाउजेंड में कैरी करेंगे। 1000 प्लस 1000 इक्वल 2000, 2000 प्लस 1000 इक्वल 3000। तो आंसर हमारे पास आ गया 3140। ओके, लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। Let's see the question number 1 of exercise 2B. Fill in the blanks. A part is 100 minus 80 equals 20. Yes, 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएंगे। इनको हम वर्टिकली लिख के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बी पार्ट इज़ 629 माइनस 29। 629 में से 29 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यस 600। सी पार्ट है 770 माइनस 700। 770 में से 700 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 70। यस। डी पार्ट इज़ 226 माइनस 20 इक्वल्स 206। इसको भी वर्टिकली लिख के सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ई पार्ट इज़ 1894 माइनस 1764 माइनस इक्वल्स 130। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. State whether the following are true or false. Here A part is 90 subtracted from 1090 is equal to 1000. कि 1090 में से 90 को सब्ट्रैक्ट किया तो वो हमारे 1000 के इक्वल आ गया। यस इट्स ट्रू। 1090 में से हम 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1000 ही बचेगा। बी पार्ट इज़ द डिफरेंस ऑफ 3500 एंड 4900 इज़ 400. No, it's false. 4900 एंड 3500 का डिफरेंस मीन इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर 400 नहीं बल्कि 1400 आता है। यहाँ 400 का आ गया इसलिए ये फॉल्स है। सी पार्ट इज़ वी स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द राइट ऑफ गिवन नंबर्स। कि हम दिए गए नंबर्स के राइट साइड से सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। यस इट्स ट्रू। ये बात आप बार बार इस
लेसन में सीख चुके हैं। तो लेट्स सी द डी पार्ट। इफ़ वी टेक आउट 3894 फ्रॉम 5800, अगर हम 5800 में से 3894 को टेक आउट मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो द रिज़ल्ट इज़ 2094। तो रिज़ल्ट हमारे पास 2094 आता है। नो, इट्स फॉल्स। इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आंसर रिज़ल्ट ये नहीं आता है, इसलिए ये फॉल्स है। ई पार्ट इज़ वी कैन सब्ट्रैक्ट अ 5 डिजिट नंबर फ्रॉम अ 4 डिजिट नंबर। यहाँ कहा गया कि हम 4 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नो, इट्स फॉल्स, बिकॉज 4 इज़ लेस देन 5। 4 5 से छोटा नंबर है, यानी 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर से छोटा नंबर होगा, इसलिए हम इससे 4 डिजिट नंबर में से 5 डिजिट नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो इट्स फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3. Select the correct answer from the given options. A part is take away 1500 from 2500. The result is कि 2500 में से अगर हम 1500 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है? यस, 1000। इनमें से 1000 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बी पार्ट इज़ subtracting 200 from the sum of 1200 and 7500 gives कि इन दोनों नंबर्स के सम में से इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो आंसर हमारे पास आएगा उसमें से हमने 200 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? यस, 8500। सी पार्ट इज रैना हैड 4500 rupees. She spent 3613. She is left with कि रैना के पास 4500 रुपीज़ थे तो उसने 3613 रुपीज़ स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितने पैसे बच गए? इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 887 rupees. Okay. D part is Rafe is 136 centimeter tall. Anam is 127 centimeter tall. Rafe is taller than Anam by. Rafe की हाइट 1036 सेंटीमीटर है जबकि अनम की 127 सेंटीमीटर है। तो इट मीन्स कि राफ़े की हाइट अनम से ज़्यादा है। तो राफ़े की हाइट अनम से कितनी ज़्यादा है, तो इसके लिए हम इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। यस, इट्स ट्रू। ई पार्ट इज़ 5872 माइनस 2167 इज़ इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके वर्टिकली पहले लिखेंगे फिर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3705। यस, इट्स द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एंड व्हाट विल यू डू नाउ? यस, योर होमवर्क. Do question number 1, question number 2 and question number 3 of exercise 2B in your book, and do A to H part of question number 8 of exercise 2B in your book. Okay, thanks for watching this video.